وہ پچھلے والوں میں زیادہ آئیں گے. نہیں وہ کیمرہ پیچھے بھی ہو سکتا ہے, زوم آؤٹ بھی ہو سکتا ہے پیچھے کا. بھائی اپنا بازو اندر رکھی بھائی, پچھو کہہ رہے ہیں. ہیلو یار وہ ملنا ہے جی. ہاں ہاں. ریڈی چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سپریم کورٹ کے اندر نیب ترمیم کیس کی سماعت ہے, اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ جو ریسنٹ سماعت تھی اس سے پہلے جتنی سماعتیں ہوئیں اس میں لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ کی گئی, لائیو سماعت کی گئی, سماعت پوری دنیا نے دیکھی, دکھائی جاتی رہی اور دیگر کیسز کے اندر بھی دکھائی گئی. لیکن خان صاحب نے اظہار کیا کہ مجھے سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے, میں پیش ہونا چاہتا ہوں, اپنا موقف رکھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے سامنے. خان صاحب کو ایک تو پیش نہیں کیا گیا, سیکیورٹی کا کام حکومت کا ہوتا ہے اور حکومت نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے, لیکن نہ سیکیورٹی فراہم کی گئی بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں پیش کیا گیا. اور اس چیز کے اوپر بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ تکلیف تھی کہ تقریباً 100 کے قریب لوگ جو آخری ہیئرنگ تھی اس کے اوپر اندر کورٹ کے اندر موجود تھے, جو کسی کو ہلنے جلنے نہیں دے رہے تھے, اور ان کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ واچ کرنا ہے کہ کہیں سے خان صاحب کی تصویر نہ بن جائے. کسی مرد مجاہد نے تصویر بنائی اور وہ لیک ہوئی, اس کے اوپر انکوائری شروع کر دی گئی ہے. جہاں دبئی سکینڈل, آپ نے پراپرٹیاں ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر بنائیں جس کا آپ کوئی منی ٹریل نہیں دے رہے, اس چیز کو آپ نے دبا دیا. گندم سکینڈل ہو جس میں خربوں کا ٹیکہ لگا دیا آپ نے, اس کے اوپر کوئی سدباب نہیں ہے, صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے عمران خان ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہے تو اس میں خان صاحب جب پیش ہوں تو لائیو سٹریمنگ دکھائی جائے, کیونکہ کے پی حکومت نے ایک سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ لائیو سماعت دکھائی جائے. لائیو سماعت کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ جہاں پر آپ کلبھوشن یادو ہو اس کو آپ دکھاتے ہیں, جہاں پر اسامہ بن لادن ہو اس کو آپ دکھاتے ہیں, جہاں پر اسرائیل کا وزیر اعظم ہو اس کو دکھاتے ہیں, اور جو آپ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں ہر روز کہتے ہیں جی کہ اس کو وزیر اعظم بناؤ, اس کو بناؤ, ان کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں. تو عمران خان کے اوپر تو مقدمات ہیں اور مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں, اور جو ہی کوئی سزا اگر دی جاتی ہے 2 دن میں 1 دن میں, جیسے آپ کو پتہ ہے سپیڈیں لگائی گئی ہیں, تو ہائی کورٹ میں جب کیس آتا ہے تو کنوکشن ختم ہو جاتی ہے, اسی بنیاد پہ ختم ہوتی ہے. آج 9 مئی کے کیسز, ان میں خان صاحب کی بریت ہوئی ہے, اور خان صاحب اس بنیاد کے اوپر بری ہوئے ہیں, اس بنیاد کے اوپر وہ سرخرو ہوئے ہیں کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ کوئی ایویڈنس پیش ہی نہیں کر پائی. پراسیکیوشن کے پاس کوئی نہ آڈیو نہ ویڈیو نہ کوئی ایسا کوئی ان کے پاس مواد تھا جس سے وہ ثابت کریں کہ عمران خان صاحب کا یہ قصور ہے. ناکام رہی ہے. جو روزانہ کہتے تھے ناقابل تردید شواہد ہیں جی, ہمارے پاس یہ ہے جی, وہ یہ 9 مئی والے ہیں جی, جلسہ بند کر دو جی, ان کو ریلی کی اجازت نہیں ہے جی, ان کو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے, ان کے گھروں میں کریک ڈاؤن کرنا ہے جی, ان کی عزتیں پامال کری. یہ 9 مئی والے ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عزتیں پامال کرنا, لائف, لبرٹی, پرائیویسی, فنڈامنٹل جتنے رائٹس ہیں وہ آئین پاکستان پروٹیکشن دیتا ہے ہر شہری کو, اس کو آپ سبوٹاج نہیں کر سکتے. لیکن مسلسل فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی رہی. سپریم کورٹ کے اندر ہماری درخواست آئی, اس کے اوپر کوئی قبولیت نہیں ہوئی, کہا گیا کہ کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور میں آپ کے سامنے یہ بھی کہتا ہوں کہ کل خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انوار کاکڑ, اس کی سٹیٹمنٹ اور کمشنر راولپنڈی کا بیان
दोनों बड़े अहम हैं, जो एडमिट कर रहे हैं कि किस तरह धांधली की गई, किस तरह 70,000 की लीडों को कन्वर्ट किया गया। और खान साहब ने कहा कि अनवार काकड़ की स्टेटमेंट के बाद जो वो कह रहा है कि अगर तुम मेरी बात करोगे, यानी कि मेरे गंदम स्कैंडल की बात करोगे, तो मैं फार्म 47 की बात करूंगा, और अगर मैंने फार्म 47 की बात की तो फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो उन्होंने कहा कि ये बात एडमिशन है, क्योंकि निगरान वजीर आजम वो था और उसने इंतखाबात करवाए, वो खुद मान रहा है कि ये फार्म 47 की पैदावार हैं। जब किसी शो के अंदर, टॉक शो के अंदर बैठकर इनसे बात की जाती है कि आप हलफ दे दें कि आप इस हल्के से जीते हुए हैं और हमारा उम्मीदवार हारा हुआ है, तो ये भाग जाते हैं। ये क्यों भागते हैं? क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। अब तारिक फजल चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है, क्योंकि इस मौके के ऊपर भी वो फार्म 45, 46, 47 नहीं लेकर आया, साथ जुर्माना भी किया गया है। आज भी मैंने सुना है कोई एक जुर्माना हुआ 15,000। तो वो किस लिए हो रहे हैं? इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये भागे हुए हैं। इनके पास फार्म 47 जो सारे हैं फैब्रिकेट किए हुए हैं, फार्म 45 के मुताबिक ये हारे हुए हैं, तो ये अदालत के अंदर पेश नहीं करेंगे। इसीलिए इलेक्शन एक्ट जो आपके सामने है कि वाज़ेह तौर पर जैसे इलेक्शन करवाया गया, अब इलेक्शन ऑर्डिनेंस के जरिए ये चाहते थे कि ट्राइब्यूनल्स के जो जजेस हैं वो रिटायर्ड जस्टिस साहबान हों, वो भी लिए जा सकते हैं। तो हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को, जिन्होंने कहा कि जो 6 जजेस के नाम भिजवाए गए हैं वो ही अप्रूव किए जाएं। और सेकंड बात, जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया है, अब आप देखें कि यहाँ पर मुकदमा पहले ज़ेरे इल्तवा है, जिसमें आपने 50 करोड़ तक करप्शन को जो है कहा कि वो नैब के जुमरे में नहीं आती, तो सुप्रीम कोर्ट यही पूछती है कि वो फिर किसके जुमरे में आती है, वो फिर मुकदमात कहाँ चलेंगे। लेकिन उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए सारी तरमीम की गई। और अब जो रिमांड दिया गया है कि 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर एक नया केस, तोशाखाना केस जो पार्ट 4 स्टार्ट किया गया है कि उसमें गिरफ्तारी हो तो खान साहब की बेल जल्दी से जल्दी जो है वो उसको लगाई ना जाए, तो इसलिए उन्होंने इसमें भी तरमीम की है। और एक करप्ट ऑफिसर की जहां 5 साल सजा थी उसको 2 साल कर दिया गया है। आप देख लें इनके कारनामे, आप देख लें इनकी हरकत। और 8 फरवरी को जिस तरह अवाम ने इमरान खान को जितवाया, जिस तरह मैंडेट अवाम ने कप्तान को पीटीआई को दिया, जिस तरह उसके ऊपर डाका डाला, हम किसी सूरत उसको कबूल नहीं करते। और इंशाअल्लाह ताला कप्तान ने एक कहा है कि आप जलसों के हवाले से शेड्यूल जो है वो जारी करें, जो इत्तेहादी जमातें सारी एक अलाइंस है, इंशाअल्लाह ताला शेड्यूल जो है वो जल्द आपके सामने आएगा। पंजाब में जलसे खास तौर पर होने जा रहे हैं। हमने अदालतों से रजू किया हुआ है और हम ये सदा अदालतों से कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो कि आरओ लगाए गए थे इसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये इलेक्शन के आरओ DROs होंगे, जो पहले 3 MPU के तहत लोगों को उठाते थे, अगवा करते थे, एक बेल होती थी, दूसरी फिर जब अदालत कहती थी कि जमानत होगी अब आपने इनको गिरफ्तार नहीं करना, वो फिर उठा लेते थे। तो वो जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो अब जलसों की इजाज़त नहीं दे रहे, रैली की इजाज़त नहीं दे रहे। हमारा कोई जलसा एहतजाज होता है दफ़ा 144 लगा देते हैं। तो हमने अदालतों से ये इल्तिजा की है कि हमें जलसे जुलूस रैलियाँ करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि आईन पाकिस्तान हर शहरी को हक देता है। हमारी जो जंग है वो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो आइन की बालादस्ती के लिए, और हम रूल ऑफ लॉ के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। और ये इमरान खान इंशाअल्लाह ताला जो जंग जीत चुका है, हकीकी जो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये सारे लोग जिस वक्त खान बाहर आएगा, ये सारे कोई बहाना बनाएगा प्लेटलेट्स का, कोई बहाना बनाएगा दिल की बीमारी का, ये सारे फिर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ये सारे फिर भागेंगे, क्योंकि इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, इनका जीना मरना बाहर है, जदादें बाहर हैं, दौलत बाहर है। इमरान खान ने कहा कि मैंने जितनी कमाई की है बाहर में वो सारी मैं पाकिस्तान लेकर आया, और इन्होंने जितनी कमाई, जो डाका, जो कुछ किया है, ये सारा डालकर बाहर लेकर गए हैं। अगर ये पाकिस्तान लाते तो हमारी इकॉनमी बेहतर होती ना। तो ये मुल्क दुश्मन है। इमरान खान मुहिब वतन पाकिस्तानी है। अभी इस समाज के बाद मैं जा रहा हूँ अडयाला जेल, और इंशाअल्लाह ताला मजीद आपके सामने फिर तफसीलात लाएंगी। कोई सवाल है तो वो कर लें, बाकी जो है साल के वाक़े के बारे में क्या समझते हैं कि जो वाक़े हुए?
देखें, अगर ये पाकिस्तान के साथ फेयर होना तो सबसे पहले ये कर लें कि जितनी इन्होंने मालो दौलत बाय रखी हुई है, अगर वो पाकिस्तान लेकर आ जाए ना तो इस मुल्क का कर्जा, महंगाई सारी कंट्रोल हो सकती है। ये नहीं लाते। और दूसरी बात, हम तो खुशाइन बात कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी हो। इमरान खान हमेशा कहता है कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी हो, लेकिन मसला क्या है, सरमायाकार क्यों भागता है या क्यों भागेगा? वो इसलिए भागेगा कि आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपके मुल्क के अंदर किसी को कोई हकूक हासिल नहीं है। अगर कोई कारोबार करेगा तो उसके ऊपर छापा, अगर कोई घर में रहेगा, आपने देखा नहीं है कि पिछले दिनों जो है वो जिस तरह से एक बाहर के वो यहाँ पर एक आए हुए थे तो उनको जिस तरह से जो है वो लूट लिया गया। तो जब तक इनकी गिरफ्त जो है, कानून जो है वो उसकी बालादस्ती नहीं होगी, आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। और यही बात हम कह रहे हैं। और वो उस सूरत में हो सकती है जब आप मानेंगे जिसको अवाम में मैंडेट दिया है उसको आप मैंडेट देंगे, वो आके हुकूमत संभालेंगे, बाहर पूरी दुनिया का ट्रस्ट होगा कि इस मुल्क के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ है, इस मुल्क के अंदर अवामी मैंडेट है, फिर आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी भी होगी और आपका मुल्क आगे भी जाएगा। थैंक यू।